ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं, देखो उससे आगे। So we were at this page number 46, where Mr. White, he was complaining about these poor conditions of his of this lane in which he has this house. And because he was very sad, and he was complaining that the road is like a torrent, एक दरिया की तरह है, यानी कि रास्ते पर इतने गड्ढे हैं कि उनमें जब बारिश आती है तो पानी भर जाता है। एंड दैट इज लाइक ए पॉन्ड, एक तालाब की तरह वो लगता है। लेकिन जो मिसेस वाइट है वो कहती है, नेवर माइंड डियर, परहैप्स यू विल विन टुमारो, कल तुम जीत जाओगे इस चेस गेम में। तो शी इज ट्राइंग टू डाइवर्ट his attention, and Mr. White says, perhaps I will, what do you mean? So he says, what do you mean? I'm not talking about that game. So then he says, there, you always know what is going on inside of me. So now he recognizes that, yes, you are trying to lighten me up. You are trying to do away my sadness. And Mrs. White says, oh, too, after 30 years, John. So she says, yes, I know you very well, and it is 30 years that we we are married. She goes to dresser. Dresser is that almirah is there in which all of these utensils are there, and busies herself wiping tumblers on tray there. तो वहाँ जो ट्रे है उसमें जो गिलास रखे हैं, गिलास, टम्बलर्स मीन्स गिलास, इन्हें साफ करती है, वाइपिंग मीन्स साफ करती है, पहुंचती है। एंड ही राइजेस, goes to fireplace and lights his pipe. And meanwhile, Mr. White stands up from his chair and he goes to this fireplace और अपनी जो पाइप है, सिगार है, उसे जलाता है। And Herbert is there down C, means he is uh, in the center of the stage or the room, and he says, and it's not such a bad place, Dad, after all. This place you are complaining about, this house we are living in, it is not that a bad location. One of the few old-fashioned houses left near London. It is one of those old-fashioned houses जो कि आज लंदन के पास बचे हैं। कुछ उन एक उन कुछ पुराने घरों में से एक है जो आज बचे हैं। None of your stucco villas, and he says it is not like those stucco villas. Stucco is uh, आलीशान, और वी कैन से पक्का जो पक्का जो मकान होता है उस तरीके से। होम लाइक आई कॉल इट, इट इज होम लाइक, घर की तरह है, एंड आई लाइक इट, एंड सो डू यू, और यू वुडंट हैव बॉट इट, और तुम्हें भी ऐसा ही लगा होगा, घर के जैसा ही लगा होगा। दैट इज वाई यू बॉट इट, इसलिए ही तो खरीदा। एंड ही रोल्स अ सिगरेट, he's making this cigarette, and Mr. White is uh, on the right side of the stage. R here stands for right. Growling means एक भारी आवाज में कहता है, नाइस जॉब आई मेड ऑफ दैट टू, मैंने बहुत बढ़िया किया ये घर खरीद कर। So he is trying to be ironical, means he does not mean actually that it was a nice choice, but he is saying with 200 pounds owing on it, कि मुझ पर अभी भी इस घर खरीदने की वजह से 200 पाउंड का कर्ज है। Howard says, uh, who is on back of chair center, in the center of the house or room, the stage, back of chair is कुर्सी के जो कमर है उस पर टिका कर बैठा है। एंड ही सेज,
why I shall work that off in no time. That why is here for well, well, ठीक है, कोई बात नहीं. I shall work that off means I will pay that back. जो कर्ज है उसे मैं चुका दूंगा in no time. That बिल्कुल, no time means बहुत जल्दी, बहुत कम समय में. Matter of 3 years with the rise promised me, and it is the matter of 3 years. 3 साल की बात है. uh, with the rise promised me, जो मेरे जो सैलरी है उसे बढ़ाने का जो प्रॉमिस किया गया है, अगर वो प्रॉमिस किया जाता है, यानी कि मेरी सैलरी इतनी बढ़ती है, तो 3 साल में मैं ये कर्ज आराम से चुका दूंगा. एंड मिस्टर वाइट सेज, if you don't get married, if you don't get married, because if you get married then you have more expenses, ज्यादा खर्च होते हैं. so that is why he says, अगर शादी नहीं करोगे तभी तुम 3 साल में इस कर्ज को उतार पाओगे. And Harvard says, not me, not that sort. Sort is type. That I am not that kind of person, that type of person who marries. Mrs. White says, I wish you would, Herbert. A good steady lad. And three dots. And she stops there, thinking. She says, I wish, मैं चाहती हूँ कि काश तुम शादी करते. A good steady lad. और उसके बाद फिर क्या होता? Lad is here for boy. That you will be a good and a kind of stability will be there in your life after you get married. She brings the tray with a bottle of whiskey. She brings the tray. एक ट्रे में लेकर आती है bottle of whiskey, glasses, lemon, spoons, buns, buns is bread, and a knife to the table. These things she brought. And Harvard says, lots of time, mother. So उसकी माँ ने पीछे कहा कि काश तुम शादी कर लेते और एक स्टेबल लाइफ में आ जाते. तो हर्बर्ट कहता है, लॉट्स ऑफ टाइम मदर, बहुत समय है अभी, तो बहुत टाइम पड़ा है. सफिशिएंट फॉर द डे एज द सेइंग गोज मीन्स अभी अभी काम चल रहा है, मुझे कोई अभी क्या जरूरत है, इतनी जल्दी क्या है शादी की. जस्ट just now my dynamos don't leave me any time for love making. So he says, just now, abhi, I am very busy with my work. Dynamo is that machine which is used uh, in that company or that factory where this Herbert is working. And this dynamo converts the mechanical energy, which is our physical energy, into electromagnetic energy. ठीक है, उससे बिजली बनती है. तो कहता है डायनामोस के साथ बहुत ज्यादा अभी मैं बिजी हूँ, एंड आई हैव नो टाइम फॉर लव मेकिंग. दैट आई डोंट हैव एनी टाइम फॉर these things like getting married. Jealous they are, I tell you. So he is trying to be funny, uh, trying to make her laugh, that these dynamos are jealous of me. They don't want me. They don't want that I leave them. They want me to uh, keep working with them. I tell you, I am telling you, they don't want me to get married. And Mr. White says, chuckling means मजाक करते हुए कहता है, I lay awake of night, all nights often, and think. कभी कभी I lay awake means ऐसे ही जागे हुए पड़ा रहता हूँ रातों को. And think, and I think, if Herbert took a nap, अगर Herbert एक एक नैप होता है झपकी लेना, झपकी ले ले, and let his, what do you call dynamos run down, all Fulham would be in darkness. तो कभी मैं रात के समय ऐसे ही लेटे लेटे सोचता हूँ कि अगर हर्बर्ट गलती से
सो जाए, एक झपकी लेने लग जाए और वो डायनामो जो है वो रुक जाए, तो क्या हो, सारा जो फुलहम है उसमें तो अंधेरा छा जाएगा, लाइट नहीं रहेगी. लॉर्ड व्हाट अ जोक, he goes right center. RC is right center, goes Mr. White. So he says, what a joke. What a joke means, uh, because he is saying that Herbert is doing all this. ठीक है, अकेला हर्बर्ट नहीं है, और भी बहुत सारे वहाँ लोग हैं जो काम करते हैं. But he is trying to make this joke. A knock is heard at the outer door, and then there is a knocking at the outer door. बाहर का जो दरवाजा है, जो मेन गेट है, उस पर एक नॉकिंग सुनाई देती है, खटखटाहट सुनाई देती है. एंड मिसेस वाइट, शी सेज हार्क. हार्क मीन्स लिसन. द नॉक इज रिपीटेड लाउडर. और व्हेन शी सेज हार्क, तो जो नॉकिंग है, खटखटाहट है दरवाजे पर, दस्तक है, वो तेज हो जाती है. मिस्टर वाइट गोइंग टूवर्ड्स द डोर, दरवाजे की तरफ जाते हुए कहता है, दैट्स हिम, दैट द सार्जेंट मेजर. ये, हाँ, ये वही है. मीन्स सार्जेंट मेजर मॉरिस आ गया है. ही अनलॉक्स द डोर बैक. जो पीछे की तरफ दरवाजा है उसे वो अनलॉक करता है, खोलता है. Herbert removes the chessboard because this Sergeant Major Morris, who is a guest, he has arrived to their house, and so he is removing that chessboard from the table and says, "Wonder what yarn he has got for us tonight." Yarn means a story or a joke. कहता है wonder, I wonder that what joke we will listen tonight. आज की रात के लिए हमारे लिए जो सार्जेंट मेजर है क्या कहानी लेकर आया है, क्या कहानी सुनाएगा. He places the chessboard on the piano, and with that, ये कहते हुए चेसबोर्ड को पियानो पर रख देता है. Mrs. White goes up right and busies herself putting the other armchair nearer fire, etc. और इस तरह की कुछ अरेंजमेंट्स, कुछ चीजें सेट करने वो लगती है मिसेस वाइट. डोंट लेट द डोर स्लैम जॉन. और कहती है दरवाजे को एकदम से बंद मत हो जाने देना. स्लैम होता है एक जोरदार आवाज, धड़ाम की जो आवाज होती है उस तरीके से. बिकॉज द विंड इज वेरी वेरी विंड इज ब्लोइंग वेरी, वी कैन से विद फुल स्पीड. बहुत तेज हवा बह रही है बाहर. एंड दैट इज वाई शी सेज बी केयरफुल. दरवाजे को एकदम से खुलने या बंद होने मत देना. एंड she was putting the armchair because this Sergeant Major Morris has arrived. तो एक कुर्सी फायर प्लेस के पास रखती है ताकि वो वहां बैठ सके. मिस्टर वाइट opens the door a little. हल्का सा दरवाजा खोलता है मिस्टर वाइट. struggling with it because the wind is very fierce. बहुत तेज है हवा. स्ट्रगल करता है उस दरवाजे के साथ. थोड़ा दरवाजा जो है हवा के दबाव से पूरा खुलना चाहता है, लेकिन वो उसे रोक रहा है. विंड. Sergeant Major Morris, a veteran with a distinct military appearance, left arm gone, dressed as a commissioner, is seen to enter. Mr. White helps him off with his coat, which he hangs up in the outer hall. तो इस तरीके से सार्जेंट मेजर जो है आता है. वेटरन, वेटरन मीन्स एक 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 experienced, or we should say a retiree, a person who has retired from military. And left arm gone, उसका जो बायां बाजू है वो नहीं है.
युद्ध में कहीं उसका उसने अपना एक हाथ खो दिया है. ड्रेस्ड एज ए कमिश्नर, एंड ही इज ड्रेस्ड एक कमिश्नर की तरह उसने कपड़े पहने हैं. इज सीन टू एंटर एंड वी सी हिम एंटरिंग और कमिंग ऑन द स्टेज. मिस्टर वाइट हेल्प्स हिम ऑफ विद हिज कोट. उसका जो कोट पहना है उसने उसको उतारने में उसकी मदद करता है और उसे टांग देता है. इन द आउटर हॉल, उनके जो हॉल है बाहर का, उसमें उसे टांग देता है. एंड मिस्टर वाइट एट द डोर, दरवाजे पर ही है अभी, कहता है स्लिप इन क्विक, जल्दी से भीतर आ जाओ. इट इज as much as I can do to hold it against the wind. That I don't have much power. I don't, I cannot hold this door for very long. जल्दी से अंदर आ जाओ, मैं इस दरवाजे को ज्यादा देर तक नहीं रोके रख सकता हवा से. सार्जेंट से awful awful, एंड कहता है बहुत ही बेकार, बहुत ही भयानक. बिजी टेकिंग ऑफ हिज क्लॉक. क्लॉक इज हिज गाउन, उसका जो एक लंबा कोट है उसको उतारने में बिजी हो जाता है. एंड अ माइल अप द रोड बाय द सिमेट्री इट्स वर्स. कहता है और एक मील का जो रास्ता है, सिमेट्री इज कब्रिस्तान, कब्रिस्तान के साथ साथ जो एक मील का रास्ता है, इट इज वर्स, बहुत ही बेकार है ये तो. इनफ टू ब्लो द हेयर ऑफ योर हेड. तुम्हारे सिर से बालों को साफ कर सकता है, यानी कि हवा जो है इस ऊपर बहुत ज्यादा तेजी से बह रही है और सिर के बाल उड़ जाएं ऐसी हवा है. मिस्टर वाइट सेज गिव मी योर स्टिक, अपनी छड़ी मुझे दो. सार्जेंट सेज इफ इट वाजंट आई न्यू व्हाट अ वेलकम आई वुड गेट. कहता है इफ इट वाजंट आई न्यू, मुझे आ, नहीं पता होता कि किस तरीके से मेरा स्वागत होगा तो मैं शायद नहीं आता. मिस्टर वाइट सेज प्रेसिडिंग हिम इनटू द रूम. जो लास्ट हमने लाइन पढ़ी, विच मीन्स दैट अगर मुझे ये पता होता कि इतना खराब मौसम है यहाँ पे तो मैं नहीं आता. सो दैट इज द वेलकम. मिस्टर वाइट प्रेसिडिंग हिम इनटू द रूम, कमरे में उसे उसके आगे आगे चलते हुए कहता है सार्जेंट मेजर मॉल, यस कम ऑन, कम इन, आउट. और मिसेस वाइट कहती है टट टट सो कोल्ड यू मस्ट बी, कम टू द फायर, डू यू नाउ. तो यहाँ जो डी एपोस्ट्रोफी उसके बाद डबल ई है, इट मीन्स डू यू. कहती है टट टट विच मीन्स जैसे ठंड में हमारे दांत कटकट आते हैं उस तरीके से इतनी सर्दी है और तुम्हें बहुत ज्यादा ठंड लग रही होगी. कम टू द फायर, इस आग के पास आओ, अंगीठी के पास आओ, यहाँ बैठो. एंड Sergeant says, how are you, mom? So mom here is means for, it is for madam. That madam, how are you? To Herbert. So now he is saying to Herbert, how's yourself, lady? Lady is for boy or ladke. How are you? Not on duty yet, day week. तो यहाँ ये पूछता है उससे that you are not on duty yet, नाइट वीक, डे वीक, क्या सुबह का हफ्ता चल रहा है. मतलब जो वहाँ जो देश है वेस्टर्न कंट्रीज, देयर दे हैव दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट कि कुछ लोग रात को काम करेंगे, कुछ दिन को काम करेंगे. और जो ये शेड्यूल है ये शिफ्ट होता रहता है, शिफ्ट होता रहता है कि एक हफ्ता रात को काम करेंगे, एक हफ्ता दिन में काम करेंगे. तो इसलिए यहाँ सार्जेंट पूछता है डे वीक, क्या तुम इस हफ्ते दिन में काम कर रहे हो, बिकॉज इट इज द नाइट टाइम एंड ही इज स्टिल एट हिज होम. एंड हर्बर्ट एट सेंटर सेज नो सर, रिप्लाइज नहीं सर, नाइट वीक, रात की ही ड्यूटी है, बट
देयर इज हाफ एन आवर येट, लेकिन अभी आधा घंटा है. मिस्टर वाइट मिक्सेस ग्रोग फॉर मॉरिस. ग्रोग इज वाटर, शराब में पानी मिलाना. ठीक है, शराब में पानी मिलाता है मॉरिस के लिए. Sergeant says, Sergeant sitting in the armchair above the fire, which Mrs. White is motioning him towards. Sitting in the armchair. एक आर्म चेयर है, एक कुर्सी है आरामदायक, विद आर्म्स, उस पर वो इसमें बैठा है. अबव द फायर इज नियर द फायर, एंड मिसेस वाइट इज मोशनिंग हिम टुवर्ड्स. मीन्स वो उसकी तरफ उसे जो 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 सार्जेंट है उसकी तरफ, हम कह सकते हैं आग को, एक तरफ से जो गर्माहट है उसको उसकी तरफ करती है. मोशनिंग भेज रही है. थैंक यू काइंडली मैम. तो इसलिए वो कहता है थैंक यू मैडम. दैट्स गुड. दैट्स a sight better than the trenches at Chitral. So he is reminded of some places, क्योंकि when he was serving in the army, जब आर्मी में वो काम कर रहा था, तो चित्राल इज अ प्लेस वेयर देयर वर मैनी ट्रेंचेस. ट्रेंचेस होती हैं खाई, खाई होती है. तो कहता है उस उन खाइयों से ये बहुत ही एक एक अच्छा नज़ारा है. मीन्स वहाँ बहुत ठंड होती थी. एंड हियर दिस फायर प्लेस इट इज बर्निंग, एंड all of this heat I am getting, it is very good. That's better than sitting in a puddle with the rain pouring down in bucket. So again, he is uh, sharing or expressing his experiences which he had serving while he was serving in the army. तो उस टाइम के अपने एक्सपीरियंस, अनुभव रहे, उनके बारे में बताता है. कहता है कि दैट यहाँ आग के पास बैठना बहुत ही बेहतर है इन कंपैरिजन विद सिटिंग इन ए पडल. पडल इज एक तालाब पानी से भरा हुआ. विद रेन पोरिंग डाउन, और जो बारिश है वो हो रही है, बारिश हो रही हो और आप एक तालाब में बैठे हैं. तो रेन पोरिंग डाउन इन बकेट मीन्स भर भर के, बकेट होता है बाल्टी, कि भर भर के यानी कि बहुत तेज बारिश हो रही है. एंड यू आर सिटिंग इन ए कोल्ड कोल्ड वाटर बॉडी. उससे बहुत अच्छा है यहाँ बैठना. एंड द नेटिव्स टेकिंग पॉट शॉट्स एट यू, which means firing, and your enemy was firing at you. So, in that kind of dangerous situation, uh, uh, in being into that dangerous situation, it is better to be here. Didn't you have no umbrella? क्या तुम्हारे पास कोई छाते नहीं थे? She is at the corner below the fire. So this Mrs. White, she is at the corner, कोने में है, below the fire, आग के पास, and kneels before it, stirs it, etc. और इसके आग के सामने वो बैठी है. एंड जो लकड़ियां हैं उन्हें हम कह सकते हैं दैट शी इज पुटिंग और शी इज मैनेजिंग दैट वुड, अच्छी तरीके से जो लकड़ियां हैं वो जलें. एंड सार्जेंट सेज अम्ब्रेल. सो ही इज शॉक्ड. शॉक्ड है, हैरान है. कहता है अम्ब्रेला, हो दैट्स गुड, बहुत बढ़िया. White, that's a good. So this White is for here, Mr. White, because his wife has asked a very thing which should not be asked. ठीक है, एक ऐसी चीज, बहुत ही कॉमन साधारण चीज के बारे में पूछा है उसने, मिसेस वाइट ने. तो इसलिए कहता है दैट इज गुड. डिड यू हियर व्हाट शी सेड? सुना तुमने क्या कहा इसने? पूछ रही है कि क्या तुम्हारे पास छाते नहीं थे? एंड गैलोशेस एंड हॉट वाटर बोटल्स,
क्या ये सारी चीजें नहीं थी? Oh yes, no offense, mom, but it's easy to see you was never a soldier. तो कहता है, नो ऑफेंस, बुरा मत मानिएगा, बट इट इज इजी टू सी, लेकिन मैं साफ साफ देख सकता हूँ, बिकॉज यू आर आस्किंग such stupid questions that you never served in army. कि तुमने कभी भी यू वर नेवर ए सोल्जर, कभी तुमने एक फौजी फौजी का काम नहीं किया है, ठीक है? ये कहता है दैट इज व्हाई यू आर टॉकिंग अबाउट these things of which are facilities, ठीक है? इन सभी सुविधाओं के बारे में पूछ रही हो, क्योंकि फौजी का जो जीवन है उसके बारे में नहीं जानती। Herbert says rather hurt. So at this, Herbert is hurt. बुरा लगता है हर्बर्ट को। कहता है mother spoke out of kindness. Sir, मेरी माँ ने जो कहा, क्या तुम्हारे पास छाते नहीं थे? She asked that. उसने पूछा out of kindness, because of her kindness. दयालुता के कारण पूछा, कोई ऐसा मकसद नहीं था कि आपका मजाक उड़ाया जाए। And Sergeant says, and well I know it, and I also know that it was out of kindness, and no offense intended, और मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। ऑफेंस इज अगेन बुरा लगाने का या ठेस पहुंचाने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। इंटेंडेड इज इंटेंशन, मेरा कोई इरादा ऐसा नहीं था। नो माम, नो मैडम, नहीं मैडम। हार्डशिप, हार्डशिप इज द सोल्जर्स लॉट। हार्डशिप इज टफ लाइफ, एक कठिन जीवन। दैट इज द सोल्जर्स लॉट। लॉट मीन्स समथिंग दैट comes or which is there in the life of a soldier. Starvation, fever, and get yourself shot. Starvation is भूखा, भूख, भूखा रहना। फीवर, बुखार सहन करना। एंड गेट योर सेल्फ शॉट, और गोली खाना। यही चीजें हैं जो सोल्जर के हिस्से में आती हैं। दैट्स bit of my own, and that is also which was there for me. Mrs. White says, you don't look to have taken much harm except, so अब कहती है, you are talking about this starvation, fever, and saying that the life of a soldier is very tough, but it does not look you it does not look that you have lost so much, that much harm has been done towards you. She indicates his empty sleeve, except that you have lost your arm. She takes the kettle to the table, then returns to the fire. जो केतली है उसे लेती है टेबल से, और उसके कोट के नीचे जो एक मेडल छिपा है उसे दिखाता है। and he says, and that I got this for. And I got this for means मैंने अपना ये एक बाजू खोया, उसके बदले मुझे ये मेडल मिला। नो मैम, टफ। नो मैडम, it is tough. Thomas Morris is tough, and his name is Thomas Morris, Sergeant Major Morris. So he's saying that I am a very tough man. Mr. White is holding a glass of grog under the sergeant's nose. और इसी बीच जो मिस्टर वाइट है वो एक ग्लास लेकर के आता है जिसमें शराब है, और इसे सार्जेंट की नाक के नीचे ले आता है। And sober, what's this now? So he was saying that I am tough, I am sober, means I am calm. What's this now? क्योंकि ये गिलास जो है जिसमें कुछ है, वास्तव में शराब है, उसे सार्जेंट की नाक के नीचे ले आता है ताकि उसे सूंघ सके। सो सार्जेंट आस्क्स, पूछता है, व्हाट इज दिस नाउ? ये क्या है? मिस्टर वाइट सेज, पुट योर नोज इन इट, यू विल सी। पुट योर नोज मीन्स स्मेल इट, सूंघो इसे और
तुम्हें पता चल जाएगा ये क्या है। एंड सार्जेंट सेज whiskey and no and hot and sugar and a slice of lemon. No, I said I would never, but seeing the sort of night, well. तो कहता है he is shocked, or maybe he is pretending to be shocked that, oh, we have whiskey and it is very hot, uh, sugar is there and a slice of lemon. So he says, I said I would never. मैंने कहा था कि मैं कभी विस्की या फिर ड्रिंक नहीं करूंगा, मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, बट सीइंग द सॉर्ट ऑफ नाइट, लेकिन जो आज की रात है बहुत ही ज्यादा सर्दी है, इसे देखते हुए, वेल, ठीक है, तो ले लेता है। वेविंग द ग्लास एट देम, और ग्लास को उनकी तरफ हिलाते हुए कहता है, हियर इज अनदर 1000 a year, means he is simply cheering that cheers. And Mr. White sits right at the table also with a glass. राइट में जो टेबल है उस पर जो टेबल है उस टेबल पर बैठता है, यानी कि टेबल पर नहीं बैठता है, बट on that chair which is with that table, also with a glass, and he is also having a glass of wine, whiskey, and says same to you and many of them. And Sergeant to Herbert who has no glass, जिसके पास कोई ग्लास नहीं है, उसे कहता है what, not you, means जो हर्बर्ट है he is not टेकिंग विस्की, वो नहीं पी रहा है, तो कहता है व्हाट, नॉट यू, तुम नहीं पी रहे। तो हर्बर्ट लाफिंग एंड सिटिंग अक्रॉस हिज चेयर, हंसते हुए, सिटिंग अक्रॉस हिज चेयर में अपनी जो सार्जेंट है उससे, जो उसके उसके बराबर में जो दूसरी कुर्सी है वहां बैठते हुए कहता है, और इट इजंट फॉर want of being sociable. Sociable here is for being social. कि want is means lack of something, कमी किसी चीज की। कहता है मैं इसलिए नहीं पी मैं नहीं पी रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सोशल नहीं हूँ, बट माई वर्क डोंट गो विद इट, लेकिन मेरा जो काम है वो मैं नहीं कर पाऊंगा अगर मैं नशे में रहूंगा। नॉट इफ इट वॉज एवर सो लिटिल, नॉट इफ इट वॉज एवर सो लिटिल मीन्स अगर थोड़ी सी भी मैं पी लूं तो भी। आई हैव गॉट टू कीप अ कूल हेड, मेरा जो सिर है वो ठंडा रहना चाहिए। स्टडी आई, मेरी जो आंखें हैं वो ठीक से काम करती रहें। एंड स्टिल हैंड, और मेरे हाथ पे भी स्टिल रहें, कांपे नहीं, लड़खड़ाए नहीं, ठीक से काम करें। द फ्लाई व्हील might gobble me up. So these are the requirements for that work which he does there. So that is he is telling that it is it is a work of it is a work which should be done with much care, because if I am not, I will not be careful, then fly wheel might gobble me up. Gobble means swallow, निगलना। तो जो फ्लाई व्हील है वो मुझे निगल लेगा और मैं इस मशीन में आ जाऊंगा, and I will die. So Mrs. White says, don't Herbert, that ऐसा मत कहो। She sits in the armchair below the fire, तो बैठ जाती है आर्म चेयर में which is near the fire. Herbert laughing, हंसता है हर्बर्ट, कहता है no fear mother, कहता है माँ तुम डरो मत, ठीक है, मुझे कुछ नहीं होगा। So that is for today.